Hello students, welcome you all in your chemistry class. As you all know students that in our previous class we have discussed about the introduction of the solution. Okay, so now in this class we are going to discuss or learn about the concept of concentration. Okay, and concentration terms. Okay, so here is the concentration term I would like to explain you. And I am just explaining this topic by taking some examples. So here you can consider two beakers which contain solvent like water. Okay, सॉल्वेंट मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, आपको बताया था सॉल्वेंट वो सब्सटेंस होता है जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट हो और जो अपनी आइडेंटिटी को लॉस ना करे. ओके, इजंट इट? सो नाउ here is a two beaker, you can see over here, and it will get filled by the help by the some solvent. Okay, so let us add solute like salt in both containers but in different quantities. अब यहाँ हम क्या ऐड कर रहे हैं? सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं. ठीक, तो सॉल्यूट मीन्स व्हाट? सॉल्यूट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द लेसर क्वांटिटी एज कंपेयर टू द सॉल्वेंट. ठीक, और सॉल्यूट वो सब्सटेंस होते हैं जो अपनी आइडेंटिटी को लॉस्ट कर दें. ठीक है, जो अपने मीन्स प्रॉपर्टी को लॉस करें. ठीक, तो यहाँ हमने दो बीकर लिया. सपोज दिस इज अ ए बीकर एंड दिस वन इज अ बी बीकर. तो एक बीकर में हमने डाला generally add 10 gram of NaCl, and we will in another beaker we will add 30 gram of NaCl. Now the question is which solution will be more salty? Okay, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? कौन सा सॉल्यूशन जो है वो ज्यादा सॉल्टी होना चाहिए? 10 ग्राम वाला या 30 ग्राम वाला? ठीक, ऑब्वियसली सी बात है 30 ग्राम वाला. ठीक, क्यों? तो why is it more salty? The question is comes, why is it more salty? तो यहाँ पे हम मोर क्वांटिटी ऑफ NaCl को ऐड कर रहे हैं, इसी कारण से ये 30 ग्राम ऑफ NaCl बीकर क्या है? मोर सॉल्टी है. ठीक, नेक्स्ट concentration of NaCl is more over here. So here is the definition of the concentration of the solution. Concentration of solution is the amount of solute dissolved in a known amount of solvent or solution. So now I am explaining the definition of the concentration. So concentration of a solution is the amount of solute dissolved in a known amount of solvent or a solution. मतलब concentration क्या है? जब हम किसी solvent में या solution में हम कितना भी amount of solute जब add करते हैं तो वो क्या है? particularly concentration कहलाता है. उस solution के क्या है? concentration. मतलब the amount is added in a amount of solute is added in a solvent or solution is referred to as concentration of a solution. Okay, so now the question is arise, what is the meaning of dilute solution? तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, इसको हम जरा एक्सप्लेन करते हैं. जैसे आपने सुना होगा बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूशन में बी ऑफ टू टाइप्स. ठीक, सॉल्यूशन को हम टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन और सेकंड वन होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. ठीक, डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन होता है? जिसमें कि लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड होता है. लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. ठीक, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? large amount of solute will be added. Large amount of solute will be added. ठीक, और अगर इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें तो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? पतला सॉल्यूशन. ठीक, और कंसंट्रेटेड मींस गाढ़ा सॉल्यूशन. जैसे एक ग्लास पानी में 1 चम्मच शुगर सॉल्यूशन. ठीक है, शुगर सॉल्यूशन. और दूसरी तरफ क्या है? चाशनी. तो आपने देखा होगा जब आप चाशनी बनाते हो तो शक्कर का अमाउंट ज्यादा रखते हो एज कंपेयर टू द पानी. ठीक, एज कंपेयर टू द वाटर. ठीक, सो हियर ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट द सॉल्यूशन इज गोइंग टू बी divided into two types, dilute and concentrated one. ठीक है, dilute means less amount of solute will be added and concentrated means large amount of solute will be added. Okay, so now here we are going to discuss about the dilute solution.
So a solution in which solute is present in very small quantity. Next one is what is the meaning of concentrated solution? Concentrated solution क्या होगा? A solution in which solute is present in large quantity, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे अगर हम देखें तो एक टाइप का सॉल्यूशन और हम देखते हैं जिसको हमने बोला है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोला है? सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन हमें नोन हो, जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता हो, ठीक, तो वो क्या है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन की हेल्प से ही हम कई सारे सॉल्यूशंस बना सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, सॉरी नॉट सैचुरेटेड, इट्स स्टैंडर्ड, ओके। सो a solution whose concentration is known is called as standard solution। मतलब ऐसे सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन आपको नोन हो वो क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ठीक। सैचुरेटेड सॉल्यूशन अलग होगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या है? जब हम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज गोइंग टू बी एडेड, ठीक है, और जहां पर्टिकुलर लिमिट हो जाती है, जब सॉल्यूशन आपका जो है वहां सॉल्यूट जो आपका घुलना बंद कर दे, तो उस कंडीशन में वो उस केस पे वो आपका सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक। सो डोंट लाइक बी कंफ्यूज बिटवीन द स्टैंडर्ड एंड द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है? ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन हमें नोन हो, वो क्या है? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की हेल्प से ही हम कई सारे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए फ्रॉम दिस एनी अदर नोन कंसंट्रेशन कैन बी प्रिपेयर। तो जैसे 100 मोलर से हम 10 मोलर सॉल्यूशन बना सकते हैं, 10 मोलर से 1 मोलर, 1 मोलर से 0.1 मोलर, ठीक, और 0.1 मोलर से 0.001 मोलर। आप यहाँ देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ठीक है, ये क्या है? डार्क ब्लू कलर का है, फिर धीरे धीरे आप देखें इसका जो कलर है वो क्या हो रहा है? फेड हो रहा है। मतलब यहाँ पे हम धीरे धीरे सॉल्यूट का अमाउंट कम करते जा रहे हैं, ठीक। तो मतलब ये कैसा होगा? ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। जैसे जैसे इसका अमाउंट कम हो रहा होगा सॉल्यूट का, वैसे वैसे ये क्या हो रहा होगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ जा रहा होगा। तो मतलब 0.001 मोलर जो है आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन है, और 100 मोलर सॉल्यूशन क्या है? आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ओके। नाउ which way is better to describe solution if the options are given? तो एक आपका ऑप्शन दिया है क्वालिटेटिवली, दूसरा आपका दिया है क्वांटिटेटिवली। तो इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सा बेटर ऑप्शन होगा सॉल्यूशंस को बनाने के लिए? तो मेरे हिसाब से होगा आपका क्वांटिटेटिवली। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ ईच एंड एवरी सब्सटेंस, ठीक। हम किसी भी सब्सटेंस की क्वालिटी जो है हम नॉर्मल लाइफ में अगर हम यूज करें, जैसे कोई मेहमान आए और मम्मी ने आपसे बोला कि यू जस्ट प्रिपेयर अ मीन्स लेमन जूस और कुछ भी आप शरबत बनाए, ठीक है। तो आप अब आप ये तो नहीं कि आप लेमन की क्वालिटी देखोगे, अच्छा लेमन है या बेकार लेमन है, कितनी पीएच है कितनी नहीं है, ठीक, तो वो तो आप नहीं देख सकते ना, इट इज नॉट पॉसिबल। बट आप क्या कर सकते हो? आप ये जानते हो कि हाँ भाई एक गिलास पानी में 2 चम्मच शक्कर सफिशियंट है, ठीक है। तो दिस इज द बेस्ट मेथड by which we can prepare the solution, okay। So quantitatively is the best method to prepare the solution by, because it is based on the amount of the solute, okay। So quantitatively, so that is based on the amount of the solute। Next, can concentration be expressed in one way or two ways or many ways? ये क्वेश्चन है, क्या हम concentration को और किसी वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक। तो yes, it can be expressed in many ways, okay। So concentration can be expressed in many ways, and what are the ways? So here you can see the most commonly expressed concentration terms are mass percentage, volume percentage, mass by volume percentage, ppm, mole fraction, molarity, molality, normality and formality, ठीक। तो ये सारे concentration terms हैं जो हम easily क्या करेंगे? इसको discuss करेंगे, ठीक। तो one by one we are going to discuss these concentration term। So here we can start it। So we can first we are just going to discuss about the mass and volume percentage, okay। So first we are going to discuss that mass percentage। So it is denoted by W by W percentage। W means we are just taking the weight of the substance, that is in the form of gram। तो definition क्या है? The amount of solute in gram present in 100 gram of the solution is called mass percentage। मतलब कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूट जब आपने किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया है तो वो क्या कहलाएगा? आपका मास परसेंटेज, ठीक। फॉर्मूला इसका क्या है? तो मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट का आप निकाल सकते हो, ठीक। मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक। इसी पे बेस्ड आपका एक यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है। सपोज आपने कहीं देखा होगा, जैसे आपने जो है जनरली दवाई वगैरह अगर आपने ली हो, मेडिसिन वगैरह, तो उसमें ये टर्म आपने देखा होगा 35%, 35% W by W। इसका मतलब क्या होता है, ठीक। तो आप यहाँ पे देखिएगा, इसका मतलब ये है
35 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ हम बात कर रहे हैं व्हाट डू यू मीन बाय 35% W/W ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये है कि 35 ग्राम जो है ग्लूकोज आपका 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। ठीक, उसी के जैसे आप यहाँ और भी देख सकते हैं, जैसे मैंने बोला 10% ऑफ NaCl सॉल्यूशन, 10% ऑफ NaCl सॉल्यूशन। ठीक, तो मतलब 10 ग्राम ऑफ NaCl इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अंडरस्टूड। जैसे मैंने बोला 50% ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, तो मतलब 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बात आई समझ? ठीक, सो इसको हम जनरली इस वे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे वेट ऑफ ग्लूकोज। जैसे कि हम निकाल सकते हैं 35 ग्राम है, यहाँ आपको दिया गया है 35 ग्राम ग्लूकोज। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम। तो यहाँ से आप वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हो। ठीक, कैसे? आपको पता है सॉल्यूशन क्या होता है, आपने देखा है सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो अगर आपको सॉल्वेंट का निकालना है तो आप सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस कर दो तो इजीली निकल जाएगा। तो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट माइनस कर दो तो आपका किसका आ जाएगा? सॉल्वेंट का आ जाएगा। इजंट इट और नॉट? ठीक, तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा, अब आप देख सकते हैं यहाँ वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 माइनस 35, आपके पास कितना आएगा? 65 ग्राम। और आप देख सकते हैं 35 का 65 अगर आप करें तो ये आपका जो है सॉल्यूट है और 65 ग्राम क्या है? आपका सॉल्वेंट है। ठीक, तो 35 और 65 किसके बराबर होगा? सॉल्यूशन के बराबर, 100। ठीक, इतना क्लियर है? नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड if 22 ग्राम ऑफ बेंजीन डिसॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक, तो यहाँ हम देखते हैं मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट बेंजीन के लिए अगर हम निकालें तो 22 ग्राम आपको यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में। सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है? 122 ग्राम। सॉल्यूशन आप लोग निकाल सकते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट 22 प्लस 122 इक्वल्स टू 144। ठीक, अब यहाँ पे आप देखिए मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, तो आपको सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है? 22 और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? 144 इंटू 100। तो यहाँ आप निकाल सकते हैं 15.28%। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे आप निकालो तो वो कितना दिया हुआ है? 100 में से 15.28 माइनस कर दो तो वो आपके पास किसका आ जाएगा? सॉल्वेंट का। ठीक, सो आई होप स्टूडेंट you like my video. So students, with this we have ended our topic and we will continue this topic in our next class. So if you have any queries, ask in the comment section below. Like and subscribe to YouTube channel. Thank you.